ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ 3 ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। 3 ਫੇਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਆ AB, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫੇਸ BC, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ AC। ਆ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ, ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਆਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ A ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਥਰੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਡਰੋ ਕਰਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਡਰੋ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਾਟਡ। ਆਹ ਡਾਟਡ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਟਡ ਦਿਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆਹ ਵੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ N1 ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਆਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ N2 ਕਹਿ ਦਿਓ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਟਕਰਾਈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਹੈ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲਾਈਟ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਆਹ ਡੈਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਨੇ ਮੁੜਨਾ ਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਨੋਰਮਲ ਵੱਲ। ਨੋਰਮਲ ਕਿਹੜੀ? ਰੈਡ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਐਵੇਂ ਮੁੜ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਬੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਨੋਰਮਲ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮਰਜੈਂਟ ਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ E ਕਹਾਂਗੇ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਟੋਟਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਆ ਐਵੇਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਟੋਟਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਐਂਗਲ ਆ, ਐਵੇਂ ਲਾਈਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਤੋਂ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? R1, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਲਾਈਟ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ R2, ਇਹ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ O ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹ O ਐਂਗਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਂਗਲ O, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ I, ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ R1, ਅਤੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਐਂਗਲ? ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ I ਆ, ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ I ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਵੀ I ਹੋਊਗਾ। ਜੇ I ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ R1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? I ਮਾਈਨਸ R1। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਆ,
मैं इत्थे डॉट जिहा पा देना, इत्थे एंगल बनता पिया आई माइनस R1, इत्थे तो मैं डॉट पाया है ना। डॉट वाला एंगल कितना हो गया आई माइनस R1। हुण इदां ही इत्थे एंगल ई आ, इत्थे एंगल R2 आ, ठीक है, ये एंगल R2 आ, तो आ एंगल कितना होगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आ भी टोटल ई बनूगा ना, टोटल ई बनूगा ये भी, क्योंकि आ लाइन कटदियाँ पियाँ। तो जे ई विचों मैं R2 माइनस करदा तो आ डॉट वाला एंगल मतलब आ एंगल आई मीन जिथे मैं डॉट पाया ये कितना बन जूगा ई माइनस R2, ई माइनस R2, ए डॉट आई माइनस R1, आ वाला डॉट वाला एंगल ई माइनस R2, ठीक है। तो हुण आपां इस पॉइंट नूं कह लैंदे पॉइंट M, इनू कह लैंदे पॉइंट N, इस पॉइंट नूं कह लैंदे पॉइंट L, ठीक है। तो हुण की करोगे तुसी, देखो आ जी हुण ट्राइंगल है ना आ वाली, इनू मैं जी रीड्रॉ कर ला थोड़ी जी, क्योंकि उत्ते छोटी है दिसदी घट पई है, मैं इनू रीड्रॉ कर लेना। कि ट्राइंगल मैं रीड्रॉ कर रहा, आ पॉइंट L है, M है, N है, आ जिथे मैं डॉट पाया सी ये एंगल कितना है आई माइनस R1, आ जिथे मैं डॉट पाया सी ये एंगल कितना है ई माइनस R2, तो आ एंगल कितना है ये एंगल है डेल्टा। तो जोड़ा एक्सटीरियर एंगल हुंदा ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर हुंदा, मतलब डेल्टा इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल किहड़ा आई माइनस R1 प्लस दूजा इंटीरियर एंगल कितना है ई माइनस R2, तो डेल्टा कितना आ जाऊगा आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। मैंने ब्रैकेट लिखता क्योंकि दोनों नेगेटिव सीगे, तो ये प्लस साइन आ गया, क्योंकि बाहर नेगेटिव है, खोलोगे तो दोनों नेगेटिव हो जाए, तो एक इक्वेशन तो आ बन गई, ठीक है। इन्नी तो समझ आ गई होनी है कि नहीं समझ आई, आ गई ना। अच्छा हुण एक ट्राइंगल ना आ वाली ले लो, MN इत्थे पॉइंट O आ है ना, ये MA है ना, ये तो आ एंगल कितना है R1, ये एंगल कितना है R2, ये एंगल कितना है एंगल O। तैनूं पता तीन एंगलों का सम कितना हुंदा, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O, तीन एंगलों का सम हुंदा हमेशा 180 का, ठीक है। हुण देखो मैं की करना है, हुण मैं एक क्वाड्रिलेटर लेनी है, आ पॉइंट M आ, ये पॉइंट A है प्रिज्म का, MA से ना है ना, A है आ वाला AMNO मतलब MA हो गई। एक क्वाड्रिलेटर आप ले लें, क्वाड्रिलेटर केड़ी है लाइक दिस 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 दिस। क्वाड्रिलेटर विच टोटल एंगल कितना हुंदा 360 का याद रखना, राइट। तो आ क्योंकि ये नॉर्मल है ये, मतलब ये एंगल क्योंकि आ रेड लाइन से ना, ये रेड डॉटेड लाइन सी प्रिज्म च, देखो प्रिज्म वाले है ना, आ लाइन डॉट रेड सी ना नॉर्मल सी, तो इसका मतलब कि ये नॉर्मल लाइन है, तो मतलब की हो गया ये एंगल 180 का। तो आ लाइन भी रेड लाइन है, ठीक है, ए लाइन भी नॉर्मल है, तो ये एंगल भी कितना हो गया 180 का टोटल। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, मैं चार एंगल लिख लेना 90 प्लस एंगल ए प्लस आ वाला एंगल 90 प्लस आ वाला एंगल ओ, ये कितना होगा सारा ऐड करके 360, ठीक है। चार एंगलों का सम कितना होंदा 360, 90 90 किन्ने हो गए 180, 180 नूं इधर लै जाओ,
तो इसका मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल ओ दैट बिकम्स 180 डिग्री। ठीक है ना, समझ आ गई इतने तक कि एंगल ए प्लस एंगल ओ इज 180 डिग्री। हुण देखो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इत्थे भी 180 इत्थे भी 180। इसका मतलब कि आ चीज़ ये बराबर होगी, तो दैट मीन R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल O। तो इसका मतलब ओ कट जाएंगे। R1 प्लस R2 एंगल का इक्वल आऊगा, R1 प्लस R2 एंगल इक्वल्स टू कि आ रहे ए दे एंगल E। गुड हो गया ना। हुण देखो आ इक्वेशन तुसी लिखी सी, इत्थे की लिख सकते हो R1 प्लस R2 की जगह आ लिख सकते हो, है ना। इनू हटा के की लिख दो ए एंगल E इत्थे। डेल्टा कितना बन जू, फिर डेल्टा आ जाऊगा, डेल्टा बिकम्स I प्लस E माइनस ए, क्योंकि R1 प्लस R2 ए दे इक्वल है। तो आ इक्वेशन साडी बनती पई ए प्लस डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अ प्रिज्म कि I प्लस E ए प्लस डेल्टा होंदा। I आ एंगल है इंसीडेंस एंगल, E एमरजेंट एंगल है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा टोटल डेविएशन है। ठीक है, बोलो समझ आ गई कि नहीं है? आई आ गई ना, ओके। चलो एक तो आ इक्वेशन याद रखोगे रखोगे। अच्छा एक इक्वेशन तुहानू होर मैं दसदा कि नहीं? ओके दस देना। देखो जी मैं इत्थे लिखा कि इत्थे आई आ, इत्थे R1 रिफ्रैक्शन आ, तो स्नैल्स लॉ लिखदा मैं, तो मैं की कहांगा म्यू इक्वल्स टू साइन आई, मतलब रेयर टू डेंसर ए म्यू ग्लास। ठीक है, एयर तो ग्लास जा रही ना, साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1। तो जे एंगल घट होंगे हैं ना, जो सपोज एंगल घट हो तो साइन आई तो साइन R1 की जगह तो सिंपली तुसी आई तो R1 सीधा ही लिख सकते हो कि साइन आई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू आई, साइन R1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R1। ठीक है, इसका मतलब कि आई की बन गया म्यू R1। ओके, इदां ही तुसी ए फेस तो लिखो कि जे लाइट एवें आऊगी एवें आए लाइट, फिर एवें जाऊगी ना, एवें आके एवें जाएगी, तो फिर मैं इत्थे लिखदा हैगा म्यू, लाइट एवें आ रही है तो साइन ई जा कित्थे रही है अंदर प्रिज्म विच, एंगल कितना बनता पे R2, साइन ई अपॉन साइन R2। तो जे एंगल घट हो तो ए की बन जाऊगा म्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन R2, है ना, क्योंकि साइन ई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ई, तो साइन R2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R2, तो ई का बराबर बन जाऊगा म्यू R2। तो आई की वैल्यू तो आई की है म्यू R1, ई की है म्यू R2। इत्थे लगा दो आ इक्वेशन ए इक्वेशन ने कि फिर हो जाना, इस इक्वेशन ने हो जाना ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई कितना सीगा म्यू R1 प्लस ई कितना है म्यू R2। तो इक्वेशन की बन गई ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू R1 प्लस R2। अच्छा तुसी हुणे इत्थे प्रूव किया कि R1 प्लस R2 ए दे इक्वल है ना, तो यदी जगह ए कर दो, फिर
ए प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू म्यू ए। इत्थों आ गया डेल्टा इक्वल्स टू म्यू ए माइनस ए, तो डेल्टा की बन गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। मतलब ये इक्वेशन की दसदी, ये इक्वेशन दसदी कि जी डेविएशन होंगी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिपेंड करूगी, क्योंकि जे इक्विलेटरल प्रिज्म आ तो कॉन्सटेंट हो जू 60 का, डेल्टा कादे ते डिपेंड करू फिर सिर्फ म्यू ते कि प्रिज्म का म्यू कितना। ठीक है, एक बार मैं फिर दस देना है ना, ईजी सीगा, औखा नहीं है, तुसी ऊँ ना दिमाग बिठा लेना कि पता नहीं कितना मुश्किल है। ठीक है, देखो पहला एंगल आई है, ये R1 है, आ छोटू जहा एंगल निकाल लो I माइनस R1, ये E है, ये R2 है, छोटू जहा एंगल R डॉट वाला निकाल लो E माइनस R2। फिर ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल दे विच तीन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल का इक्वल होंगे इंटीरियर एंगल्स से, एक डॉट वाला इंटीरियर एंगल ये है, दूजा ये है। ठीक है, I प्लस E माइनस आप कॉमन कढ़ लिया, इनू छड्डो हम। फिर मैं आ चो एंगल ले ली, आ वाली तीन एंगलों का सम 180 होंगे, मैं इक्वल्स टू 180 करता, R1 प्लस R2 प्लस O 180। फिर मैं पूरी क्वाड्रिलेटर ले ली, आ क्वाड्रिलेटर में चार एंगलों का सम 360 होंगे, दो तो 90-90 के है ही है, एक एंगल ए है, एक एंगल ओ आ 360, तो 90 180 360 तो कट के 180 रह गए, एंगल ए प्लस ओ 180 आ गया, इनू तो इनू कंपेयर कर लिया, तो 180 ओ सेम आ, तो यदा मतलब R1 प्लस R2 ए दे इक्वल आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। फिर आप R1 प्लस R2 की वैल्यू इतने सबस्टिट्यूट करती ये, ठीक है, जो इतने सबस्टिट्यूट की सी, फिर मैं इक्वेशन कितने लिखी सी, मैनू लगता है कि इतने गुम हो गई, डेल्टा इज इक्वल्स टू कहाँ गई, यहाँ लिखा था ना, मतलब R1 प्लस R2 की वैल्यू मैं इतने लाई से ना, तो वो इक्वेशन कितने गुम हो गई जी, लभदी भी कितने नहीं, जे नहीं लभदी इतनी होनी है, तो लिखी होनी ना। चलो मैं एक बार फिर दस देना, इतने R1 प्लस R2 की जगह आप की लाता ए, आ इक्वेशन की बन गई डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस ए, तो इतों हो गया I प्लस E इक्वल्स टू ए नू इधर लै जाओ ए प्लस डेल्टा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आप पहली इक्वेशन आ बनाई सी। ठीक है, आ लिखी सी, सॉरी आ इत्थे आ गई, मैं लभ रहा सी इक्वेशन कितने गई इत्थे। ठीक है, ये तो गल हो गई खत्म। फिर आप म्यू लिख लिया इत्थे, साइन I ओवर साइन R1, I अपॉन R1, I की वैल्यू लभ ली। फिर एवें असी म्यू इत्थे लिख लिया, म्यू इक्वल्स टू साइन E ओवर म्यू की वैल्यू तो E की वैल्यू कढ़ ली। ठीक है, तो I तो E की वैल्यू में आप सबस्टिट्यूट करता इस इक्वेशन है ना, तो वो आप फिर म्यू कॉमन कढ़ लिया, म्यू ए बन गया म्यू R1 प्लस म्यू R2, म्यू कॉमन कढ़ लिया, R1 प्लस R2 ਨੂੰ ए के बराबर पहले ही प्रूव किया है, आ बन गई, डेल्टा आ गया म्यू ए माइनस ए, तो डेल्टा हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। दैट्स लास्ट इक्वेशन कि डेविएशन जी है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिपेंड करती, क्योंकि ए कॉन्सटेंट होंगे। ओके, मैनू लगता हुण भी कोई डिफिकल्टी होए ना तुहानू, तो प्लीज़ राइट मी 9888 169 226। ओके, थैंक यू।